Hello guys, welcome back to a third session of number theory. So guys, I hope सबने first two lectures completely properly कर लिए हैं. उसके corresponding sheets भी अगर आप कर रहे हो, I hope, right? Properly करो guys, ठीक है? कुछ भी doubts हैं तो आप you can refer the solutions as well. Okay, we'll try to keep a doubt session or something also, right? Okay. All right. So guys, let's continue with the congruence concept, right? हम congruency of numbers देख रहे थे number theory के अंदर. Okay, let's continue with this. But before moving on, let's have some questions, right? एक दो questions करते हैं फिर हम आगे continue करेंगे. Although guys, in this session mostly we will be doing different kinds of questions. तो और थोड़ी familiarity congruence के concept से लेके आएंगे congruent मॉड्यूलों के साथ, right? Okay, so guys अब तक तो आपको मालूम ही है. जैसे ही मैं question show करूंगा, please pause the video, attempt it yourself and let's see आप सही कर पा रहे हो कि नहीं उसको, right? Let's begin guys. Here is the first question. Okay, all right, so try this guys, then we'll discuss. Okay, all right, so guys I hope सबने try कर लिया इस question को. We have to find the remainder when 9 power 1990 is divided by 11, right? That is our question कि guys ये number को अगर आप 11 से divide करते हो है ना, तो what will be the remainder? तो guys सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, आगे से ये shortcut type बनाएंगे हम अपना. So guys, what do we know? 9 is congruent to -2, right? 11 से अगर हम डिवाइड करते हैं, we can consider कि रिमाइंडर क्या है, -2 है mod 11. तो guys हमें तो 1990 तक जाना है. So guys यहाँ से हमें अभी एक बात समझनी है. That means first of all our question can be made to be equivalent to कि 9 की पावर 1990 है ना. So if I raise to power 1990, this question converts to -2 raised to power. It is congruent to -2. Just a second guys. Okay, -2 raised to power 1990, right? Mod 11. The question has converted to this form. Rather हम क्या बोल सकते हैं guys, that we have to see what is this 2 power, क्योंकि नेगेटिव साइन की पावर इवन नंबर कर रहे हैं, तो बेसिकली we have to see 19 power 1990 mod 11. So guys अपना क्वेश्चन ना रिड्यूस होके इस फॉर्म में पहुंच गए. We needed to find 9 power 1990 का रिमाइंडर क्या होगा when divided by 11. So that question has reduced to कि हम rather than 9 power 1990 हम एक छोटा नंबर पे ले आए, 2 power 1990 का रिमाइंडर हमें फाइंड करना है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपने क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, रिड्यूस कर लिया है ना. तो नाउ माई बेसिकली द नेक्स्ट आंसर शुड बी कि हमें अब अपना टास्क क्या हो गया गाइस कि 2 की पावर 1990 का रिमाइंडर फाइंड करना है, एंड दैट वुड बी द आंसर, राइट? आई होप इट इज क्लियर यहां तक. So let us find the concept guys. हमने क्या पढ़ा था लास्ट सेशन में, that now we would like to find such a power of 2. मुझे मेरा क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो गया, that I have to find the remainder of 2 power 1990 when divided by 11, है ना, ये अपना क्वेश्चन है अभी. तो the thing is हमने क्या पढ़ा था कि 2 की कोई ऐसी पावर देखेंगे कि जिसको जब 11 से डिवाइड करें then the remainder is either 1 or -1, कोई ऐसा पावर ढूंढते हैं ना. तो 2 का गाइस जो first power that I can think of is 5, because 2 power 5 is 32, right? 2 power 5 is 32, right? Which is congruent to -1 mod 11, है ना? That is -1 mod 11, right? तो guys यहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं. Now to raise it to power 1990, है ना, तो गाइज 3 पावर रेज टू पावर क्या करेंगे, 398 कर देंगे ना. विल रेज टू पावर 398. आई थिंक 5 पावर 400 इज 2000, तो उससे 2 कम है ना, 1990 है. तो 398 इंटू 5 करेंगे तो विल गेट 1990. यू सी गाइज, तो यहां से नाउ आई हैव टू रेज इट टू पावर 398. तो राइट लेफ्ट साइड पे क्या बन जाएगा, 2 पावर 5 इंटू 398, है ना, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे. So we'll get 2 power 1990, जो कि हमें फाइंड भी करना था. And on the right hand side it becomes -1 power 398, which corresponds to remainder of 1. चलो नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं. So -1 power 398 means 1 mod 11. So guys the final thing is कि फाइनली आंसर क्या आया कि रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 1 होगा, राइट? So the final answer is the remainder would be 1. तो गाइज इस तरह से हम अपना क्वेश्चन को इजी कर सकते हैं.
सो गाइज यहां से हम आगे से शॉर्टकट करेंगे। ऐसा कैसे कि बच्चे जो ये 9 है ना, 9 को 11 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर है, हम डायरेक्टली उसकी पावर 1990, पावर सेम रहेगी, तो उसकी पावर में वो जो नंबर है वो डायरेक्ट डाल के हम बोल सकते हैं कि उसका रिमाइंडर निकाल लो, एक ही बात है, राइट। सो मेनी टाइम्स वी माइट यूज दिस, ऑलराइट। या फिर 9 को जब हम डिवाइड करते हैं उसका रिमाइंडर ढूंढ लिया तो पावर हम बाद में कर सकते हैं एडजस्ट, ओके, सेम पावर डालनी है, ओके। सो डू रिमेंबर दिस, विल बी यूजिंग दिस इन द सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस, ठीक है, इस तरह की चीजें हम यूज कर रहे होंगे, ऑलराइट। तो गाइज आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर है, ऑलराइट। लेट्स डू वन मोर एज अ क्विज क्वेश्चन, रैपिड फायर क्विज, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। सो पॉज द वीडियो, ऑलराइट। तो गाइज आई होप सबने ट्राई कर लिया इस क्वेश्चन को। नाउ दिस वन इज वेरी वेरी इजी गाइज, हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस प्रोडक्ट, ठीक है। तो दिस वन वी नीड टू आंसर यूजिंग साइक्लिसिटी। हमने गाइज साइक्लिसिटी पढ़ा था लास्ट क्लास में, है ना, या फिर लास्ट टू लास्ट में पढ़ा था, आई थिंक फर्स्ट सेशन में। सो नो प्रॉब्लम गाइज, पुराने कॉन्सेप्ट यूज होते रहेंगे बार बार, ठीक है। तो गाइज मल्टीप्लीकेशन में हम सिंपली देखते हैं व्हाट विल बी द पावर ऑफ 3, लास्ट डिजिट ऑफ 3। देखो गाइज इस प्रोडक्ट के अंदर इफ आई वांट टू सी द यूनिट्स डिजिट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड इज कि तीनों नंबर्स का यूनिट डिजिट का प्रोडक्ट चाहिए मेरे को, इजंट इट। इन तीनों नंबर्स में आई विल बी नीडिंग दिट्स देयर यूनिट डिजिट, ठीक है ना। तो गाइज अब क्या करेंगे, हम 3 की पावर्स देखते हैं। व्हाट इज द साइक्लिसिटी ऑफ 3, दैट इज 4, साइक्लिसिटी 4 की है, राइट। सो कैन आई से कि 3 की पावर 1999 will have the unit digit same as 3 cube, है ना, बिकॉज 3 की साइक्लिसिटी 4 है पावर का, तो 3 पावर 4, 4 के जितने मल्टीपल्स आप हटा सकते हो पावर में से हटा दिए। सो 1999 का रिमाइंडर क्या मिलेगा अगर आप 4 से डिवाइड करोगे, पावर को 4 से डिवाइड करना है अभी आपको, क्योंकि आपकी पावर का जो साइक्लिसिटी है वो 4 का है, राइट। सो दैट्स व्हाई विल डिवाइड द पावर बाय 4, ठीक है। 4 4 के कितने साइकिल्स हटा सकते हैं, विल बी लेफ्ट विद द रिमाइंडर 3, राइट। सो रादर आई कैन राइट हियर, अगर आपको लिख के दिखाऊं तो मैं, द पावर कैन बी रिटन एज इन द टर्म्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4। देखो 2000 का मतलब 500 होता है, सो 4 इंटू 499 प्लस 3, राइट। मैं सिर्फ ये वाला लिख के दिखा रहा हूं टू गेट यू एन गुड आइडिया। तो पावर ऐसे लिख सकते हैं, तो सिंस वी नो द पावर ऑफ साइक्लिसिटी, पावर ऑफ 3 हैज अ साइक्लिसिटी ऑफ 4, 4 के पावर के बाद रिपीट करता है ना, it will have the same last digit as 3 cube and that gives us the final digit as 7, right? Clear guys? तो 3 पावर 1999 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 होगा। सिमिलरली गाइस 7 का क्या साइक्लिसिटी है, देखो 7 पावर 1 7, 7 पावर 2 49, 9 into 7 63, इसका भी साइक्लिसिटी 4 का होता है। सो यू कैन सी 7 पावर 2000 विल हैव सेम एज 7 पावर 4 जैसा रिमाइंडर, है ना। So that will give you the remainder as 1, or you can say 7 power 0 as well, 7 power 0 भी बोल सकते हो, उसका भी रिमाइंडर लास्ट डिजिट क्या देगा, वो 1 देगा, नॉट द रिमाइंडर, द लास्ट डिजिट विल बी 1 यूनिट्स डिजिट। तो गाइस जो लास्ट नंबर है 17, 17 पावर 2001, तो गाइस 17 पावर 2001 विल हैव सेम डिजिट एज 7 पावर 2001 क्योंकि लास्ट डिजिट 7 है, और 7 पावर 2001 सिंस द साइक्लिसिटी ऑफ 4, तो 2000 में से 4 के मल्टीपल्स अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यू बी लेफ्ट विद द रिमाइंडर ऑफ 1, तो इसका 7 पावर 1 वाला रिमाइंडर होगा विच इज 7। तो फाइनली गाइस 3 यूनिट डिजिट्स क्या मिल गए तीनों के, 7 1 एंड 7, एंड हमें उनको क्या करना है, मल्टीप्लाई, 7 into 1 into 7। सो विद दिस थिंग गाइस द नंबर इज 49, है ना, प्रोडक्ट क्या है 49 है, राइट, 49 इज द प्रोडक्ट and this gives us the unit digit as 9. So final answer to this question should be 9. Okay guys, I hope ये बात क्लियर है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है। तो बच्चों फाइनल आंसर आपका होगा ऑप्शन सी। Okay, let's check it on the next slide. So there it is, the answer is 9. Alright guys, I hope it is clear till this point. Okay, alright then guys, हम आगे कंटिन्यू करते हैं विद द कॉन्ग्रुएंस कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसी के क्वेश्चंस करने गाइस, थ्योरी तो वही था जो हमने लास्ट क्लास में करा था, लास्ट सेशन में जो हमने किया था, बट विल बी डूइंग मच मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना। हम वो देखेंगे कि और किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, थोड़े वेरिएशंस हम देखते चलेंगे। ऑलराइट, चलो लेट्स कंटिन्यू गाइस, लेट्स सी द क्वेश्चन। ओके,
इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे गाइस काफी. ओके, ऑलराइट, लेट्स सी. सो फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर k such that 2 power 69 plus k is divisible by 127. तो मतलब काइंड ऑफ बच्चों हमने क्या करना है, देखो 2 पावर 69 प्लस k इज डिविजिबल, ऐसा k हमें फाइंड करना है ना. एक तरह से गाइस इसको ऐसे सोच सकते हो, k इज सच अ नंबर जो हम 2 पावर 69 में ऐड करें तो डिविजिबल हो जाए 127, है ना. से द पॉइंट बीइंग, इसको इनडायरेक्टली हमें करना क्या है गाइस, आवर जॉब विल बी टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 पावर 69 इज डिवाइडेड बाय 127. जो रिमाइंडर आएगा, नाउ आवर क्वेश्चन विल बिकम उस रिमाइंडर में हम मिनिमम क्या स्मॉलेस्ट नंबर ऐड करें so that it becomes divisible by 127. तो of course guys I'll give you an example. Let's say 2 power 69 का रिमाइंडर 100 आ जाता है. Let's say, I'm not saying वही आएगा, let's say 100 आ जाता है ना. तो भाई आपको पता है ना गाइस 100 में क्या ऐड करें so that it becomes divisible by 127. स्मॉलेस्ट नंबर क्या ऐड करें? Of course with 100 you'll add 27 more ताकि 127 कंप्लीट हो जाए, which will become divisible by 127, है ना. So that is how we have to answer this question. So अपना कोर ऑब्जेक्टिव इसमें पहले तो ये है कि 2 पावर 69 का क्या रिमाइंडर आता है वो हमें फाइंड करना है ना. तो गाइस बाय लुकिंग एट 127 एंड 2 की पावर्स, आपके माइंड में लॉजिक आना चाहिए, है ना. यू शुड गेट दिस वेरी क्विकली. 2 के पावर्स गाइस 2 पावर 10 तक सबको याद होने चाहिए, है ना. दिस इज माय सजेशन. यू शुड एक्चुअली रिमेंबर ऑल द पावर्स ऑफ 2 टिल 2 पावर 10. इट विल बी वेरी हैंडी, बहुत बार यूज होता है ना. तो guys what I remember is 2 power 7. 2 power 7 is equal to 128, right? 2 power 7 is 128. So 128 is congruent to 1 mod 127, है ना. ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई. So guys you now know 2 power 7 is congruent to 1. So we need to go reach till 69, right? 69 तक हमें पहुंचना है. तो भाई 7, अब नाउ व्हाट शुड आई रेज दिस, व्हाट पावर शुड आई रेज दिस, है ना. इसकी क्या पावर रेज करें कि 69 बन जाए. तो व्हाट इज द नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 7 बिफोर 69, है ना. 69 से पहले कौन सा मल्टीपल आएगा, 63 बनता है. दैट मींस इफ आई रेज दिस होल इक्वेशन टू द पावर 9 आई विल गेट 2 पावर 63 congruent to 1 power 9, right? So that is 1 only, 1 power 9, which is basically 1 mod 127, right? यहां तक तो हो गया हमारा. We have reached till 63. Now we need to multiply some number so that it becomes 2 power 69. So guys now I'll need to multiply with 2 power 6, है ना, तभी तो पहुंचेंगे 2 power 69 तक. So if I multiply now, है ना, मल्टीप्लाई किया तो गाइस पावर्स ऐड हो जाएंगी. 63 plus 6 is 69 and on the right hand side we will also have to multiply, है ना. 2 power 6 को मल्टीप्लाई राइट साइड पे भी करना पड़ेगा. बट व्हाट इज 2 power 6? दैट इज 64, है ना. 2 power 6 is 64 mod 127. मीनिंग ये होगा इस फाइनली कि 2 power 69 को अगर आप 127 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 64 मिलेगा, राइट. सो गाइस ऑलरेडी ये वाला पोर्शन 64 रिमाइंडर दे रहा है. सो द क्वेश्चन सेज व्हाट शुड आई ऐड टू दिस 64 ऑन बोथ साइड्स so that this should be divisible by 127, smallest number, है ना. तो guys you think about it, I will want such a number k so that positive number बोला है ना, smallest positive number, integer rather, so that guys तो nearest integer कौन सा होगा जो 127 से divisible हो जाए 64 के आगे, 127 होगा. so that means 64 plus k should give you 127. this is what it should be, है ना. तो गाइज इससे k की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, 63, राइट. 127 माइनस 64 दैट गिव्स अस 63, ठीक है. तो दैट शुड बी आवर फाइनल आंसर, दैट इज 63. ओके, आई होप गाइज सबको क्लियर है. लेट मी शो यू ऑन द नेक्स्ट स्लाइड व्हाट्स द आंसर. यस, सो द आंसर इज 63. ऑलराइट, सो गाइज आई होप सबको क्लियर है यहां तक. ओके okay, let's move on to the next one and that is quite a good one. That is another very good question कि कैसे करते हैं. okay, so let's observe this. So guys the question is what is the remainder when 6 power 273 plus 8 power 273 is divided by 49. okay, so guys 49 is made up of what, we should understand first this thing.
49 is made up of 7 into 7, right? तो ये पता लग गया. Okay, now let us consider this expression. तो guys, isn't this same जो हमने बेसिक मैथ्स में किया था कि a पावर n प्लस b पावर n फॉर्म है ना? दिस इज a पावर n प्लस b पावर n फॉर्म वेयर n इज ऑड, तभी इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, राइट? सो एज वी नो गाइज, दिस एक्सप्रेशन will be able to factorize it like this. 6 power 273 plus 8 power 273 is equal to a plus b, that is 6 plus 8, and then it will be, देखो गाइस क्या आएगा, 6 की पावर 272 माइनस 6 की पावर 271 इंटू 8 की पावर 1, ठीक है, प्लस, सो इट कीप्स ऑन ऑल्टरनेटिंग द साइंस, है ना? प्लस माइनस आता जाएगा, 8 का पावर बढ़ता जाएगा, 6 का कम होता जाएगा, राइट? सो 6 की पावर 270 इंटू 8 स्क्वायर एंड दिस विल कीप ऑन गोइंग, है ना? लास्ट में क्या आ जाएगा, प्लस 8 की पावर 272. दिस इज अप टू दिस स्टेप. एंड व्हाट विल डू इज, लेट्स से गाइस इसको कुछ नाम दे देते हैं, वी शुड जस्ट नोटेट इट. लेट्स से दिस एक्सप्रेशन इज p. ओके, नो इश्यूज, ठीक है? तो गाइस देखो, हाउ मच इज दिस, अवर एक्सप्रेशन हैज बिकम 14p, है ना? सो गाइस देखो, 14 में ऑलरेडी 2 into 7p हो गया, एंड वी हैव टू चेक द डिविजिबिलिटी बाय 7 by 7, है ना? तो एक 7 तो गाइस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे एक तरह से, व्हेन वी विल डिवाइड इट. सो बेसिकली हमारे माइंड में क्या आएगा गाइस, इट माइट बी द केस कि भाई ये डिविजिबल ही ना हो जाए. इट माइट बी दैट p, दिस एक्सप्रेशन, होल एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय 49, then the remainder would be 0. So let us check for that first, है ना? फिर देखेंगे, अगर नहीं आता होगा फिर हम रिमाइंडर की तरफ जाएंगे, है ना? तो गाइस 7 से डिविजिबल ऑलरेडी इतना पोर्शन हो गया है फ्रंट वाला. सो नाउ इफ आई एम एबल टू प्रूव दैट p इज डिविजिबल बाय 7 एज वेल, तो एक 7 पहले कट गया, डिवाइड हो गया, है ना? सो इफ p इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 7, दैट मीन्स दिस होल एक्सप्रेशन इज अ मल्टीपल ऑफ 49. तो फिर तो आंसर 0 आ जाएगा उसका, है ना? ओके, लेट्स ट्राई दिस. So now let's see guys, what is p congruent to, when congruent to modulo 7. So before this let's understand guys, यहाँ पे समझते हैं, what is 6 congruent to. 6 is congruent to -1 mod 7, right? And 8 is congruent to 1 mod 7. So guys first of all this implies, इस एक्सप्रेशन का क्या फायदा हो रहा है? देखो 8 का तो कोई भी पावर कर दो, रिमाइंडर 1 ही आने वाला है. बट व्हाट अबाउट 6? 6 के गाइस जब भी इवन पावर होती है तब तो रिमाइंडर आता है -1. सॉरी गाइस, 6 की जब भी पावर ऑड है, राइट, लाइक इन दिस केस द रिमाइंडर इज -1. सो एंड इफ इट इज 6 स्क्वायर, इट विल गिव यू रिमाइंडर ऑफ 1, है ना? मीनिंग ये हुआ गाइस, जब भी आप 6 की इवन पावर देखोगे तो रिमाइंडर विल बी 1 mod 7 एंड ऑड पावर्स के लिए रिमाइंडर विल बी -1 mod 7, राइट? Now looking at p, if we divide p का रिमाइंडर देखते हैं गाइस, तो 6 की पावर 272 है, तो वहां से क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, है ना? इट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 माइनस 6 की पावर 271 है, ऑड है, तो वहां से रिमाइंडर क्या आएगा, -1 आ जाएगा, राइट? और 8 का तो 1 ही, सो इनटू 1 होना है, ठीक है? सिमिलरली प्लस नेक्स्ट टर्म, if we pick this 6 power 270 है जैसे, तो वहां से रिमाइंडर क्या आएगा, 1, बिकॉज -1 का पावर 270 हो जाएगा, इनटू 8 स्क्वायर, उसका भी 1 माइनस. अब देख सकते हो गाइस, द पैटर्न इज जब भी माइनस साइन आएगा उस टाइम पे तो -6 की पावर ऑड होगा, तो एक एक्स्ट्रा -1 आ जाएगा. सो दिस विल कीप ऑन गोइंग एंड द लास्ट वन इज 1. दिस इज mod 7, राइट? तो गाइज व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज, जब भी तो पावर जब भी साइन पहले से प्लस था तब तो रिमाइंडर +1 ही आ रहा है, और जब भी साइन पहले से माइनस साइन आ गई उसमें रिमाइंडर भी -1 आ रहा है. सो मेकिंग इट सच दैट कि माइनस माइनस प्लस हो रहा है, राइट? सो एक्चुअली द रिमाइंडर इज 1 + 1 चल रहा है. सो गाइज हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर. सो गाइज एज यू कैन सी, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे देख सकते हैं, 8 की पावर 0 से लेके 1 2 3 तक होते होते 272 तक जा रही है. सो इफ यू ऑब्जर्व प्रॉपर्ली, देयर आर 273 टर्म्स इन दिस, है ना?
क्योंकि 8 की पावर 0 से शुरू होकर 272 तक जाती है, तो टर्म्स बिकम्स 273 है ना, 272 प्लस 1 बिकॉज ऑफ पावर 0 एडिशनल टर्म, तो टोटल टर्म्स आर 273 है ना, सो दैट इज 273 टाइम्स, सो दिस इज इक्वल टू 273 mod 7. So guys देखो now 273 is divisible by 7 है ना, it is like basically 280 minus 7, so this is congruent to 0 mod 7 right, तो 0 आ जाएगा mod 7 करने पे, meaning guys this the answer should be 0, तो रिमाइंडर फाइनली क्या आ गया, 0 आ गया, since this particular expression is actually divisible by 49, ये 49 से पूरा डिविजिबल ही हो रहा है ना, बिकॉज एक 7 पहले आ गया एंड दिस p इज फर्दर डिविजिबल बाय 7, तो टोटल 7 स्क्वायर तो फैक्टर में आ ही रहा है, तो 49 से डिविजिबल है, ओके। अगर नहीं आता देन वी माइट नीड टू डू कॉन्ग्रुएंसी बाय 49 की चेक करते कोई पावर वगैरह करके, देन वी माइट हैव टू टेक दैट रूट, ठीक है, बट यहाँ पे 0 आ रहा है, सो विल नॉट रिक्वायर दैट, ओके। आई होप इट इज क्लियर गाइस, है ना, चलो लेट्स सी द आंसर, सो यस, सो द आंसर इज 0 है ना, क्योंकि पूरा डिविजिबल है, ऑलराइट, चलो ओके, दिस वन गाइज यू कैन स्टार मार्क इट, ओके, ध्यान से सॉल्व करना है आप इसको, यू कैन गिव इट अ गुड ट्राई बिफोर यू नो वॉचिंग द सोल्यूशन और अंडरस्टैंडिंग व्हाइल आई एम एक्सप्लेनिंग, पॉज करके गाइज इसको ट्राई कर लो, ठीक है, देन वी कैन डिस्कस इट, एटलीस्ट आपने अगर ट्राई अच्छे से करोगे ना, यू विल हैव गुड इनसाइट्स अबाउट द क्वेश्चन, ठीक है, so guys please pause the video and try this question beforehand, then we'll discuss it, all right, so guys I hope सबने ट्राई कर लिया, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहाँ पे जो नंबर है 2005 तो ठीक है, उसकी पावर में 2007 पावर 2009 है, पावर में जो नंबर है दैट इज फर्दर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, सो लेट अस डील विद इट, कुछ चीजें पहले वाली यूज करेंगे, कुछ नई चीज भी समझेंगे, है ना, बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, देखने में ही मुश्किल लगता है, बट क्वेश्चन इज क्वाइट इजी, ओके, सो लेट्स सी गाइस, ठीक है, इसको देखते हैं हम, ओके, तो इसको देखते हैं, ऑलराइट, सो गाइस द रिमाइंडर ऑफ नंबर 2005, तो पहले गाइस ये देखते हैं, मैंने अभी डिस्कस किया था ना, सो गाइस देखो, जस्ट टू अंडरस्टैंड लेट अस नेम दिस पावर एज ए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना उसमें, सो आई हैव जस्ट नेम्ड इट एज ए, तो गाइस फॉर द टाइम बीइंग लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड, आवर क्वेश्चन इज 2000 पावर 5 पावर ए का रिमाइंडर ढूंढना है व्हेन डिवाइडेड बाय 7, है ना, दैट इज आवर क्वेश्चन काइंड ऑफ थिंग फॉर द टाइम बीइंग। तो गाइस हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप इज लेट्स फाइंड 2005 को भाई 7 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आता कितना है ना, सो लेट अस सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन फर्स्ट, सो लेट्स सी, तो गाइस 2005 को 7 से डिवाइड करके देखते हैं, 20 इज अ फैक्टर, सॉरी 20 को डिवाइड करेंगे 14 आएगा, 60 से डिवाइड किया तो 56 आएगा, 45 बचेगा, सो गाइस व्हाट आई एम फाइंडिंग इज दैट दिस नंबर इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 7, right, I hope this is understood by everyone, है ना, 3 आ रहे, लेट मी थिंक, या, सो यस 2005 को गाइस 7 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट अ रिमाइंडर ऑफ 3, है ना, सो दैट मीन्स गाइस इफ आई रेज इट टू पावर ए, ओके, इधर भी ए पे रेज करना पड़ेगा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय क्वेश्चन नाउ इज कि 3 की पावर ए, जो ये ए हमने डिफाइन किया, उसका रिमाइंडर हमें ढूंढना है, दैट इज अवर टास्क नाउ, राइट, दैट इज क्लियर, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड और ट्राई टू फाइंड द पावर्स ऑफ 3, है ना, वही सेम लॉजिक कि 3 की कोई ऐसी पावर ढूंढने, स्मॉलेस्ट पावर जिसकी पावर, जिससे कि रिमाइंडर 7 से डिवाइड करने पे 1 या -1 आता हो, है ना, रादर 1 इज मच मोर कन्वीनियंट, ठीक है, तो गाइज यहां पे देखते हैं, 3 की पावर 3 is 27, right, 27 gives us remainder of -1 mod 7, है ना, 3 cube is 27, 27 gives us a remainder of -1, and if we further square it, right, raise it to part 2, अगर हम देखना चाहें, even though इसके साथ भी हम आंसर देख सकते हैं गाइस, ठीक है, do not worry about it,
तो इसका स्क्वायर अगर करते हैं गाइस, दैट मींस 3 पावर 6 gives you a remainder of 1, right? माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो दैट विल गिव अस द रिमाइंडर ऑफ 1 mod 7, isn't it? ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आ गया. सो गाइस मतलब क्या हुआ, देखो अब हम जो करते आ रहे थे, बट द क्वेश्चन इज फॉर 3 पावर a, है ना. नाउ आई हैव टू थिंक, जो a है, हम पहले भी क्या करते थे कि जो भी पावर होती थी, वी वुड जनरली सी कि जो हमारा पावर आया है, जैसे जो कि यहाँ पे 6 है ना, 3 की पावर 6 से रिमाइंडर 1 मिलता है, देन वी यूज टू सी कि भाई जो पावर है उसको अगर हम 6 से अब डिवाइड करेंगे, व्हाट इज द रिमाइंडर दैट आई वुड गेट, और विल इट बी कंप्लीटली डिविजिबल, है ना, ऐसा ही देखते थे ना, isn't it? So if I want to अगर मैं आपको रिमाइंड कराऊं, जैसे मैं आपको दिखाता हूं गाइस एक एग्जांपल जो हमने अभी किया था, लाइक वी डिड दिस विद द 2 पावर 69, है ना. देखो 2 पावर 69 वाले केस में हमने ढूंढा था कि 2 पावर 7 अगर था, दैट गिव्स यू रिमाइंडर 1. सो देन व्हाट वी डिड वाज, उसकी पावर को 7 से डिवाइड किया हमने, है ना. वी वर ट्राइंग टू फाइंड व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ द पावर व्हेन डिवाइडेड बाय 7. दैट वाज द की टर्म व्हिच वाज इन दिस केस 6, है ना. तभी तो 2 पावर 6 मल्टीप्लाई किया था ना इस क्वेश्चन में, राइट. 2 पावर 63 वाज अ कंप्लीट मल्टीपल एंड 6 वाज द रिमाइंडर व्हेन द पावर वाज डिवाइडेड बाय 7, राइट. ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है. ठीक है, सो व्हाट डज इट मीन फॉर अस इन दिस क्वेश्चन. सो सिमिलरली गाइस, यहां पे क्योंकि 3 की पावर 6 के लिए रिमाइंडर 1 है, दैट मींस आई वुड लाइक टू फाइंड कि भाई जो a है, जो पावर है, उसको मैं 6 से डिवाइड करना चाहूंगा. इट इज लाइक लेयर के अंदर लेयर है, बस यही है, बस कॉन्ग्रुएंसी का डबल यूज है. ओके, नाउ अवर क्वेश्चन इज कि भाई जो पावर है, व्हाट इज a कॉन्ग्रुएंट टू. ठीक है, आई विल जस्ट राइट दिस क्वेश्चन, व्हाट इज a कॉन्ग्रुएंट टू व्हेन डिवाइडेड बाय 6. नाउ क्योंकि 3 पावर 6 1 है ना, तो जो पावर है उसकी, जिसको हमने नाम a दिया हुआ है, वी हैव टू सी व्हाट इज द रिमाइंडर if that a is divided by 6. okay, that is the question now. उस पे रिड्यूस हो गया. ठीक है, so let us see now for this term a. तो guys a क्या है, a is actually 2007 raised to power 2009. I have to find what is this congruent to when divided by 6, right? That's the simple question. तो guys let's see, 2007 जो है उसको अगर आप 6 पे डिवाइड करते हो, है ना, वो हम अब शॉर्टकट लगाएंगे. नाउ व्हाट इज दिस कॉन्ग्रुएंट टू. 2007 को गाइस अगर हम 6 पे डिवाइड करते हैं, आई थिंक वी आर गेटिंग द रिमाइंडर ऑफ 3, क्योंकि सम इनका 9 है लेकिन ऑड है, राइट. 20 को डिवाइड किया, 2 मिला रिमाइंडर, 20 अगेन 2, 27. यस, सो गाइस देखो, आई विल राइट हियर, सिंस वी नो 2007 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 6, that means 2007 raised to power 2009 will be congruent to 3 power 2009 mod 6, right. But now it is very interesting guys, 3 की कोई भी पावर कर दो, है ना, when you are dividing any power of 3 by 6, जैसे 3 को डिवाइड किया 6 से तो रिमाइंडर 3 आता है, 3 स्क्वायर इज 9, 9 को भी अगर 6 से डिवाइड करते हो रिमाइंडर 3 ही आता है, और 9 क्यूब के लिए करते हो 27 आता है तो भी रिमाइंडर 3 आता है. दैट इंप्लाइज गाइस कि 3 की कोई भी पावर कर दो, यू विल ऑलवेज गेट अ रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 6. तो गाइस दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 6, ये मिल गया गाइस. सो व्हाट डज दिस मीन. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस. दैट मींस दैट a वैल्यू, जो a पावर है, व्हेन डिवाइडेड बाय 6 इट गिव्स यू अ रिमाइंडर ऑफ 3, मीनिंग दैट आई कैन रिप्रेजेंट a as 6k plus 3 फॉर्म. दिस इज व्हाट इट मींस. क्योंकि गाइस जो भी a था आपका 2007 पावर 2009 जो टर्म है, when divided by 6 it's giving you a remainder of 3, 3 का रिमाइंडर आ रहा है. that means that number could be represented in the form of 6k plus 3, है ना, 6 से डिवाइड किया था, यूक्लिडियन एल्गोरिथम बोल रहे हैं, तो 6 times k plus 3 लिख सकते हैं ऐसा, right. now what is, now this will help us in this form, right. now we'll replace here. तो गाइस देखो, हमें तो 3 पावर a का mod 7 करना था, वी हैव फाउंड कि 3 पावर 6 का तो 1 आता है. दैट मींस नाउ 3 पावर a, लेट्स सी, 3 पावर a which is 3 पावर
6k प्लस 3, ठीक है, 3 पावर 6k प्लस 3. नाउ दिस विल बी कॉन्ग्रुएंट टू, कैन आई से 3 क्यूब मॉड 7, है ना, क्योंकि देखो गाइस 3 की पावर 6k, दिस इज व्हाट बेसिकली 3 की पावर 6k इंटू 3 क्यूब. सो दिस टर्म इज ऑलरेडी डिविजिबल, है ना, 3 पावर 6k तो डिविजिबल ही है. तो जो भी रिमाइंडर आएगा कहां से आएगा, 3 क्यूब से आएगा, राइट. 3 पावर 6k इज डिविजिबल बाय 7, ये हमने यहां से देख लिया, ठीक है. सो द रिमाइंडर शुड बी 3 क्यूब, राइट. एंड व्हाट इज दैट, 3 क्यूब इज 27 and that corresponds to remainder of -1 और 6, है ना. जनरली गाइस फाइनल आंसर में हम रिमाइंडर नेगेटिव नहीं बोलते, mod 7. See guys, generally तो remainder is always between 0 and divisor -1, right? But for the solving purposes we take it as negative values also. But finally जब भी आंसर देना है you should prefer कि पॉजिटिव में ही आंसर दोगे, right? It's not कि हमेशा नेगेटिव नहीं लिखते हैं जनरली. Okay, so guys the final answer is 6. Okay, so that is an interesting question because guys इसमें 2 बार लेयर बाय लेयर आपको कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ता है. Okay, and it's quite a smart usage अगर आप देखोगे ध्यान से. So guys if needed please watch this question again. अगर आपको 100% क्लैरिटी नहीं आई है प्लीज सॉल्व इट अलोंगसाइड, पॉज करते करते, मतलब पॉज करके खुद सोच के फिर लिखो कॉपी पे, है ना, नोटबुक पे, तो बेटर समझ में आएगा. डोंट जस्ट वॉच द सोल्यूशन एनी टाइम, साथ साथ में सॉल्व करते रहो एक एक स्टेप. रादर मिडल में भी रोक सकते हो, देन थिंक अबाउट इट ऑन योर ओन कि भाई आगे क्या होना चाहिए, है ना. अगर आप ऐसे पढ़ने की कोशिश करोगे दैट विल गिव यू द मैक्सिमम लर्निंग आउटकम. ओके, एक्चुअली लर्न करोगे. ऑल राइट, सो गाइस द फाइनल आंसर इज 6. ऑल राइट, okay, now guys this question is, this thing is not a question itself, rather a proof and a simple one at that, ठीक है. तो you can star mark it, it is actually the, you can say guys आपने स्कूल में पढ़ा होगा ना, ये चीज आपने स्कूलों में पढ़ी होगी, स्कूल में आई थिंक, कि हाउ डू यू चेक अ नंबर इफ इट इज डिविजिबल बाय 3. सो यू मस्ट बी नोइंग कि उनका सम चेक कर लेते हैं हम. इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3. But at that point of time your teachers might not have been able to explain it to you कि ऐसा क्यों होता है, because ये सारी चीजें आपने पढ़ी नहीं हुई थी. so that is not even their fault as well, है ना. स्ट्रक्चर ही ऐसा है कोर्स का, है ना, करिकुलम ऐसा है. so no worries, now we will be actually understanding it कि ये ऐसा रूल कैसे आता है, why does it happen, so that कि जो नंबर है वो अगर डिविजिबल है तो सम ऑफ द डिजिट्स से चेक हो जाता है ना. लेट अस प्रूव दैट, ठीक है. लेट्स सी. सो गाइज इफ यू हैव एनी नंबर n, लेट अस अंडरस्टैंड, इफ यू हैव अ नंबर n ऑफ द फॉर्म लाइक दिस, है ना, a0 a1 a2 up to ak, you have some number n like this where guys these are not number itself, these are you can say a0 a1 क्या है, ओके उल्टा लिखते हैं, यहां पे लिख देते हैं, rather we can start from here. okay I'll write it again guys, ठीक है, like ak minus 1, not plus, so basically these are digits, है ना, like this. the last two digits are a1 a0, all these are digits, ठीक है ना, digits हैं. like the number is 1 2 3 4, so these are digits, ak minus 1 1 2 3 4 है ना. so how do you write this number itself, आप इसको डेसिमल फॉर्म में लिखते हो ना, बेस 10 में. हाउ डू वी राइट इट, देखो लिखते हैं ना, यूनिट्स प्लेस इनटू 1, टेंस प्लेस इनटू 10, हंड्रेड्स प्लेस इनटू 100, लाइक दैट. तो गाइस इस नंबर को कैसे लिखेंगे हम, ak इनटू 10 पावर k प्लस ak माइनस 1 इनटू 10 की पावर इनटू 10 की पावर k माइनस 1, है ना, एंड सो ऑन. हम ऐसे लिखेंगे ना सब नंबर्स को, सब डिजिट्स को. लास्ट में साथ में क्या आएगा, आई विल राइट दिस एज वेल, a2 इंटू 100 मतलब a2 इंटू 10 स्क्वायर प्लस a1 इंटू 10 प्लस a0. दिस इज व्हाट n विल लुक लाइक. ओके ओके, मैं थोड़ा एक काम करते हैं, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं. ओके लेट मी शिफ्ट इट हियर. ओके यू कैन सी इट नाउ क्लियरली, है ना.
तो ए के इंटू 10 पावर के प्लस ए के माइनस वन इंटू 10 पावर के माइनस वन हमने उस ऑर्डर में लिख दिया. नाउ गाइज इफ यू लुक एट एवरीथिंग, आपको यहां पे हमें गाइज ये समझना है व्हाट इज 10 कॉन्ग्रुएंट टू, है ना. 10 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर मिलेगा, 1 मिलता है ना, mod 3. सो है ना, 10 is congruent to 1 mod 3 and this gives us rather 10 power m is congruent to 1 mod 3, मीनिंग कि 10 का तो रिमाइंडर 1 आएगा ही 3 से डिवाइड करने पे, रादर 10 की कोई भी पावर भी अगर होगी उसका भी रिमाइंडर 1 आएगा, राइट. सो नाउ यूजिंग दिस प्रॉपर्टी गाइस व्हाट विल n कॉन्ग्रुएंट टू, हमें पता है गाइस अगर सम ऑफ नंबर्स हो रहा है तो इंडिविजुअली आप डिवाइड करके रिमाइंडर लिख सकते हो, राइट. आई गिव यू एन आइडिया like 10 power k is congruent to 1, है ना. what if I you multiply by ak on both sides, ये लिख सकते हैं ना ऐसे, है ना. सिमिलरली 10 पावर k माइनस वन, इसमें हम a k माइनस वन मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, सो इट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू a k माइनस वन इटसेल्फ mod 3, है ना. तो आप देख सकते हो मैं एक एक टर्म इसकी लिखते जा रहा हूं, है ना. सो इफ वी कीप ऑन डूइंग दिस टिल दिस a2 into 10 square is also congruent to, क्योंकि 10 स्क्वायर से हमने शुरू किया, 10 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 एंड फिर आपने a2 मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, mod 3. सिमिलरली a1 into 10 is congruent to a1 and a0 तो है ही congruent to a0, राइट. सो नाउ इफ यू एड इट लेफ्ट हैंड साइड पे तो गाइज n क्रिएट हो गया ना वापस से, सो n इज congruent to ak plus ak minus 1 and so on till a2 plus a1 plus a0 mod 3, है ना. तो ये हो गया प्रूफ. देखो गाइस कि दैट एनी नंबर n is congruent to the sum of its digits mod 3. तो अगर sum of the digits is divisible by 3 then it means the right hand side will become 0, है ना. right hand side का जो sum है if that is divisible by 3 overall it will be congruent to 0, that means number n will be divisible by 3 then, है ना. तो सिंपली ये बन गया कि अगर n डिविजिबल है तो उनका सम ऑफ डिजिट्स भी तो डिविजिबल होगा ना 3 से, है ना. सो दैट इज हाउ यू हैव नाउ बेसिकली प्रूवन दैट प्रॉपर्टी. सोचो जो आपको स्कूल में ये बताया था विदाउट एनी रीजन, नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड इट, ठीक है. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट. रादर गाइज दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर 9 एज वेल. तो 9 के लिए अगर आप सॉल्व करोगे गाइज इसी प्रूफ में नथिंग विल चेंज, ओनली mod 3 की जगह mod 9 हो जाएगा, बिकॉज 10 की किसी पावर को 3 से डिवाइड करो तब भी रिमाइंडर 1 आता है, 9 से डिवाइड करते हो तब भी रिमाइंडर 1 आता है, राइट. तो दैट्स व्हाई द प्रूफ इज प्रीटी मच द सेम. रादर अब 3 और 9 के लिए सेम ही प्रूफ है, एग्जैक्टली सेम, है ना. सो दैट इज व्हाई डिविजिबिलिटी बाय 9 इज आल्सो द सेम, कि आपको सिर्फ सम ऑफ डिजिट्स ही चेक करना होता है, ओके. सो दैट इज हियर एज वेल, वी हैव मेंशन्ड इट हियर एज वेल. इट आल्सो वर्क्स फॉर 9, ठीक है. तो divisibility test, you can say divisibility test of 3 and 9 we have proven in this way, okay. all right guys, ध्यान रखना कैसे सॉल्व करते हैं. quickly doing some divisibility test करते हैं and then we'll complete the session, ठीक है. just I'll go through some divisibility tests, ठीक है, जो आपने पढ़ रखे हैं and they are quite easy to prove. आप आधे तो अभी प्रूव कर ही चुके हो, कर सकते हो. 3 और 9 का हमने कर ही लिया, okay. let's see the next topic, divisibility tests. So we'll be covering till 11, ठीक है. 11 तक के divisibility test. Rather I'll tell you how to form a divisibility test of your own, अपना खुद का कैसे बना सकते हैं, ठीक है. Let's see. तो guys first thing, this everybody knows divisibility test of 2 कैसे देखते हैं, last unit digit से. If it is an even number, or you can say rather if last digit is divisible by 2, the number will be divisible by 2, है ना. Guys now you can understand कि कैसे आता है. कोई भी नंबर अगर है guys, if there is any number AB, now don't think कि A is a single digit, A can have all the digits but B is a single digit, है ना, where B is between 0 and 9. Don't you think guys पूरे नंबर को कैसे लिख सकते हैं, can I write it as 10A plus B, है ना. अगर आपका n इस तरह का है, I'll give you an example actually, नंबर देता हूँ guys, है ना, आप कंफ्यूज हो रहे होगे. Let us say let's say आपके पास guys नंबर है 523. What I'm trying to say is 523, we can always write it as 5 in 52
इंटू 10 प्लस 3. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. किसी भी नंबर को आप यूनिट डिजिट को अलग कर दो, लास्ट वाले डिजिट को, उसके पहले वाले जितने भी डिजिट्स हैं इंटू 10 प्लस लास्ट डिजिट लिख सकते हैं ना, इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, कोई गलती नहीं है. सो इन दिस वे आई एम सेइंग कि कोई भी नंबर n हो सकता है ना, उसको मैं 10a प्लस b फॉर्म में लिख सकता हूं. नाउ व्हेन गाइस यू डिवाइडेड बाय 2, 5 और 10, मैं तीनों टेस्ट इकट्ठे ही कर देता हूं, 2, 5 और 10 को कंबाइंड बता देता हूं. सो व्हेन यू डिवाइड दिस बाय 2, 5 और 10, गाइस ये वाला टर्म तो हमेशा ही डिविजिबल हो जाएगा ना. दिस विल गिव यू रिमाइंडर ऑफ 0, मींस आपको तो दिस विल बी कॉन्ग्रुएंट टू b ना, मीनिंग दिस दैट इन दिस केस दिस n विल बी कॉन्ग्रुएंट टू b. मॉड चाहे 2 का करो, चाहे 5 का करो, चाहे 10 का करो, है ना, क्योंकि 10 तो डिविजिबल ही है, 2 से भी, 5 से भी, 10 से भी. सो रिमाइंडर विल बी डिटरमिन्ड बाय द लास्ट डिजिट. इस तरह से आप सोच सकते हो. ठीक है. सिमिलरली अब गाइस 4 के अंदर ये टेस्ट नहीं कर सकते बिकॉज 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, है ना, इसलिए हमने क्या कहा, 2 डिजिट्स में तोड़ दिया. मीनिंग एनी नंबर n, देखो यहां पे लिख देता हूं, एनी नंबर n नाउ कैन बी रिटन एज 100a प्लस b, 10b रादर, है ना, प्लस 10b प्लस c. ऐसे लिख सकता हूं ना. लेट से एबीसी नंबर है, c इज द यूनिट्स प्लेस, b इज द टेंस प्लेस, और उसके पहले वाले सारे डिजिट्स क्या हैं, a हैं, है ना. सो व्हेन यू डिवाइड दिस बाय 4, यू विल सी यू विल गेट 10b प्लस c, है ना, और जिसको आप bc भी लिख सकते हो इन डेसिमल फॉर्म मॉड 4, क्योंकि 100 तो डिविजिबल है 4 से. दैट मींस 10b प्लस c को ही देखना रह गया. मतलब लास्ट 2 digits will determine if it is divisible by 4 or not. Same way guys you can see for 8, because 8 1000 को डिवाइड करता है, 100 को नहीं करता है. So in case of 8 you will need to see last 3 digits by this concept, है ना. I hope you can extend it to that case. 1000 times number plus 100 times plus 10 times plus units digit. तो you will see 1000 and above वाले सारे divisible हो गए 8 से. तो 100s place, 10s place, units place, मतलब last 3 digits will determine if the number is divisible by 8 or not. Okay, तो first 3 points I hope they are clear. Fourth point guys हमने अभी देखा, I gave you the whole proof 3 और 9 का, है ना. Now the number 11. So guys now what happens for 11? Actually it will be better if I tell you from the proof जो 9 के लिए किया था यहां से गाइस, है ना. सो गाइस नाउ इफ आई चेंज दिस फॉर मॉड 11, लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस. गाइस 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू, मैं यहां पे अलग से लिख के दिखाता हूं. व्हाट वी नो इज 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट मॉड 11 अगर करेंगे हम, 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड 11, राइट. बट व्हाट इज 10 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू, वो 1 आ जाएगा, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. सो यू सी गाइस 10 की ऑड पावर्स अगर आप करते हो दैट विल गिव यू रिमाइंडर -1, whereas even powers give you remainder of 1. तो यहां पे गाइस क्या चेंज आ जाएगा, लेट अस से k is even or odd whatever you choose, आपके ऊपर है. यहां से शुरू कर देते हैं. a0 तो आएगा ही, a1 से क्या आएगा, यहां पे 10 टाइम्स था ना, सो दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू -a1 मॉड 11, है ना. एंड इसमें 100 है, 10 स्क्वायर है, सो दैट विल गिव यू +a2 mod 11 and so on it will go on, right. So what you will observe guys, क्योंकि एक 10 का पावर बढ़ रहा है, प्लस लाइक -a1 +a2 -a3 +a4 ऐसे चलता जाएगा, है ना. So when you add them all up, what you'll observe is guys यहां पे माइनस साइन आएगा, right? यहां पे माइनस साइन आएगा, यहां पे प्लस है, फिर पीछे माइनस आएगा, प्लस एंड माइनस साइंस विल ऑल्टरनेट, है ना. नाउ आई कैन टेल यू हियर. सो होगा क्या, प्लस और माइनस साइन विल ऑल्टरनेट. मतलब गाइस क्या मिलता है, देखो जो हमने लिखा था अभी, a0 -a1 +a2, that the number will be congruent to a0 -a1 +a2 -a3 and will keep on going, है ना, till whatever it is, प्लस माइनस जो भी एक a तक जाओगे, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डिजिट्स, है ना, ऑफ कोर्स. मॉड 11. तो गाइस यहां से हमें वो चीज मिलती है दैट इसमें हम सम तो नहीं कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, ऑल्टरनेट चल रहा है, प्लस माइनस. सो स्कूल में कैसे बताते हैं, दैट यू एड अप द ऑल्टरनेट सेट टर्म्स, है ना.
फर्स्ट ऑल्टरनेट एंड सेकंड ऑल्टरनेट टर्म्स को अगर आप ऐड कर दो, मेक इट एज अ टू सेट्स ऑफ नंबर्स, एक तो फर्स्ट ऑल्टरनेट और सेकंड ऑल्टरनेट वाले डिजिट्स, तो उनका सम कर दो और उनको सब्ट्रैक्ट कर दो एंड देन चेक दैट नंबर इफ दैट इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट, है ना। और इन एसेंस यू कैन से ऑल्टरनेट प्लस माइनस करने, है ना, क्योंकि प्लस साइन माइनस साइन प्लस साइन माइनस साइन चल रहा है, सो यू हैव टू डू ऑल्टरनेट एडिशन सब्ट्रैक्शन, है ना। तो अगर वो डिफरेंस, इफ दिस नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 11, देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11, सो दैट इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11 जो आपने स्कूल में पढ़ा हुआ है ना, दैट कम्स फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यू कैन सी इट, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द ऑड नंबर डिजिट्स एंड द सम ऑफ द इवन नंबर डिजिट्स, दैट मींस इवन नंबर मतलब नंबर इवन वाले नहीं, कहने का मतलब है इवनली प्लेस डिजिट्स, सेकंड टर्म फोर्थ टर्म सिक्स्थ प्लेस, ऐसे सेकंड प्लेस फोर्थ प्लेस सिक्स्थ प्लेस, उनको अलग से ऐड कर दिया, है ना, जैसा कि आप यहां पे कर रहे हो, देखो जीरोथ प्लेस सेकंड प्लेस फोर्थ प्लेस ऐसे वही ऐड हो रहे हैं, माइनस द सेकंड सेट इज A1 A3 A5 मतलब ऑड नंबर डिजिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, एंड यू चेक दैट sum if it is divisible by 11 then the number is divisible by 11, right. रीजन जैसे आपको दिया हमने, any number is always congruent to a number formed by addition and subtraction of alternate digits of the given number modulo 11, जो मैंने अभी आपको लिख के दिखाया, right. तो guys these are the divisibility tests, common divisibility tests. Other than this I'll tell you how to find the divisibility test of 7 का देखते हैं, वो कभी नहीं पढ़ा होगा, है ना. So let us see how to check the divisibility by 7. All right. So here's the logic, guys. Let us say 7 का कैसे देखते हैं, वो यहाँ पे देखते हैं. So guys, let say n is any number of the form AB, है ना, where condition is B is its units digit and A represents the remaining digits, है ना. Okay, so that's it guys. Today's session will end it here. काफी लंबा चला गया वो भी सेशन, 1.25 घंटे हो गए हैं. ओके, नो नेवर माइंड, कोई इशू नहीं है गाइज, आराम से इसको करो, बहुत टाइम मिलता है आपको, बट ध्यान से करना है इसको, ठीक है, लर्न करने के पर्सपेक्टिव से करना है, वीडियो देखना है. ओके, सो गाइज प्लीज solve the corresponding questions from the assignment, right. We'll continue with the divisibility test and further topics, है ना, in the next video. So till then keep practicing guys. Okay, all the best, we'll see you in the next video. Okay, bye bye guys, take care, bye bye, thank you.